Good afternoon, everyone. I'm so sorry for starting this session a little late. We had another session at 12, so this is why it was a little bit late. So before wasting more time, I'm going to move over to the agenda of the session. In this session, you will be learning about how to comprehend the various facets of research ethics, the impact of digital age on its practice, issues of confidentiality, human subject protection, and storage of data. We'll also understand the spectrum of plagiarism given the digital explosion and how to cite properly to develop the bibliography in your discipline. I want to request all of you to please rename yourself for FCC participants. Write your university name and then your name. And for non-FCC participants, please write university name and then your name. You can do that by clicking on the right side of your video. Please keep your video off to avoid any internet connectivity issue. You will be muted during this session. If you have any questions, please type them in the chat box and we'll get to you, or you can raise hand and the moderator will get to you. By the way, I will be the moderator for the session. There will be a post-session survey towards the end of the session, and I want to request all of you to please answer that. The meeting is being recorded now. Do we have Mr. Asif? Ji, I'm here. Can't see. Hold on. Gigi, I can see you now. I'm going to make it the co-host now. So do you want me to introduce you or do you want to start this session? I think Anish thoda sa introduction phir de dein kyunki there are some new people that I see. And let's start it properly as a second session. First session I will talk to Asif later on for some of the materials that might need according to the questions asked. So we will proceed with the topic on ethics. Sure. Mr. Asif is from Gurmani School of Humanities and Social Sciences, LUMS. He has not just taught in LUMS, but in Punjab University, Punjab College of Law, Civil Services Academy, and even Meckel University. He's a teaching fellow and he has more than 30 years of experience. He has developed curriculum for Musab School as well in language teaching, and he has vast publishing experience. This is just a brief introduction of him. He has a lot of things which he has done to contribute in the learning environment. Over to you, Mr. Asif. Asif, I think I would like to run through some of the questions that I wonder if you've seen some of the questions that have come through for this session. क्योंकि आपको पता flipped mode I wasn't able to access all of them. अच्छा, फिर मैं ये करती हूँ कि हम वो आपको अभी ना अलग से उसको मैं आपके WhatsApp के ऊपर ना वो questions भेज देती हूँ so that you towards the end of the session you can address them. But right now you're talking about what are different types of research ethics and how digital age has impacted that practice, and especially also how plagiarism plays out and how citing properly can help in getting that label of plagiarism and cheating away from you. I'm sorry for the bad coinage of words, but just that's in a nutshell is research ethics. And we are talking about it, but do keep some 10 minutes for questions and some of the talk discussions that happen. They're very good. Ji, thank you. Thank you. Thank you, Ruxana. Since there are some newcomers here who weren't there in the previous session, I should just briefly like to mention what I discussed. I'm not going to discuss them, but just mentioning what I discussed in the previous one, because that directly relates to literature review. So what I was talking about, as many of you would recall, those who were present in the previous session, was the importance of literature review, and why even in the realm of social sciences or in the science of in the realm of pure sciences, where you are doing some experimentation, observation,
or collecting data, for instance. There's a lot of focus in social sciences research methodology on data collection and on statistical approaches. These are important, but I did try to highlight the importance of going through the pertinent literature. And my focus was to explain how engagement with text is very, very important. And for proper engagement with the text that you are studying, you need to be aware in modern times and in modern academia you need to be aware of number of disciplines, because the research approaches now are quite interdisciplinary. So we were talking about hermeneutics, we were talking about ideas ranging from those of Schleiermacher and Gadamer to Marxist ideas to postmodernism, and how these have shaped the way we look at things and the way we engage with text, and how a study of critical studies, whereby you can deal with multiplicity of interpretations that are coming about, and um, emphasize on your own particular viewpoint in a contestations and multiplicity of meanings through text are part and parcel of research. And if you don't delve into these areas, then your research remains very superficial. This is what I talked about in the last session. There were some interesting questions as well. कि फिर final decision making कैसे की जाती है? Obviously, in modern research, you remain a bit non-committal. That you do leave a margin for the possibility of error, which is difficult for people coming from humanities at times, especially in religious studies or philosophy, because वो entrenched ideas होते हैं. लेकिन उसमें इमाम शाफी का बड़ा खूबसूरत कौल जो है कि जब वो कहते थे कि मैं जब कोई अपनी राय पेश करता हूँ तो इस उसूल पर करता हूँ या इस मफरूजे पर करता हूँ कि मेरी बात ठीक है और दूसरे की बात गलत है, लेकिन साथ ही इस मुकदमे को भी मान के करता हूँ कि दूसरे की बात ठीक हो सकती है और मेरी बात गलत हो सकती है, तो वो मार्जिन आपको देना पड़ता है। लेकिन एट द सेम टाइम यू नो at the same time, understanding where the contestations are coming from, where the interpretations are emerging from, what are the sciences behind interpretation. मैं आपको last session में शेर की एक मिसाल दे रहा था कि आपके सामने वे अशार आते हैं, तो हमारे यहाँ जिस तरह अदब में क्रिटिकल स्टडीज में सनत हम एम्बिग्विटी की बात की जाती है। अभी जिस पेपर का मैं जिक्र कर रहा था, हाल ही में मैंने 2 लिखे पेपर किंग फाहद यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और hermeneutics के ऊपर थे। एंड the focus of our research team was on understanding how ambiguity, which was hitherto frowned upon through the scientific episteme, has now become one of the most important themes in scientific studies. क्योंकि पहले तो था ना ये जो विटगेनस्टाइन वगैरह के ज़माने में, लॉजिकल पॉजिटिविज्म के ज़माने में, the idea was कि ये ambiguity itself is a non-scientific approach of looking at things. But now, as I said earlier, and I alluded to that in my previous session, कि अब ये रियलाइज करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको क्रिएट करनी है, तो ह्यूमन माइंड की ये जो फैसिनेटिंग एबिलिटी है एम्बिग्विटी क्रिएट करने की, ये क्या एमुलेट की जा सकती है या नहीं की जा सकती? दिस इज अ मेजर साइंटिफिक प्रॉब्लम एंड साइंस कैन नॉट डू अवे विद दैट एम्बिग्विटी एनीमोर। तो शेर में मिसाल के तौर पर ये होता है, और उस पर फिर बड़ी बहसें की जाती हैं कि क्या ये यूनिविकल है या नहीं है, क्या ऑथोरियल इंटेंशनैलिटी, मंशा मुतकल्लिम जो है वो यूनिविकल होता है या नहीं होता जब एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अगर बिल्कुल एम्बिगुअस है तो फिर तो मीनिंगलेस हो जाएगा कलाम। तो जब शायर मिसाल के तौर पर ये कहता है तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता,
उसके 8 मुख्तलिफ मतालिब निकलते हैं। तुम मेरे पास तब होते हो जब मेरे पास कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास तब होते हो जब तुम्हारे पास कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास गुफ्तगू तब कर रहे हो तो गोया तब होते हो जब कोई दूसरा नहीं होता, विस्पर कर रहे हो मतलब सरप्टिशियसली आ रहे होते हो, या तो जब तुम्हारे पास, तो मीनिंग्स निकलते चले आते हैं। तो क्या डज दिस क्रिएट अ प्रॉब्लम? नो, द इंटेंशनैलिटी इज स्टिल यूनिवोकल, द इंटेंशनैलिटी इज स्टिल यूनिवोकल। सादापन जो होता है, जिसको हम इदमाज कहते हैं अपने इल्म बयान में, तो उसको तो हर आदमी आसान करता है क्योंकि टू लेयर्ड होता है। जब वो गालिब कहते हैं वो कि भाई दूर से मुझे इशारे ना करो, मैं तुम्हें जिस सवाल का जवाब दे रहा हूँ मुंह से बताओ, बोसे को पूछता हूँ मैं, मुंह से मुझे बता के यूं, तो वी लाफ इमीडिएटली बिकॉज वो पन हमें इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि क्या कह रहा है वो। और वो दोनों ही मुराद होते हैं, मीनिंग्स टू क्रिएट हो रहे हैं लेकिन इंटेंशनैलिटी एक ही है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन फ्रॉम द एंगेजमेंट। व्हाई एंगेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, आई स्पोक एट लेंथ ऑन इट। मैंने साइंस की भी आपको मिसालें पिछले सेशंस में दी कि उसके अंदर कितना नथिंगनेस का आइडिया जो स्टीफन हॉकिंग्स ने दिया, अगर आप अल्फाज पर गौर ना करें तो एंगेजमेंट ऑफ टेक्स्ट कैन बी वेरी वेरी मिसलीडिंग। नथिंगनेस से उसकी क्या मुराद है, कहाँ वो इंटरप्रेट कर रहा है, कहाँ उसके बायसेस पाए जाते हैं, ये टेक्स्ट को स्टडी करने में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। तो आई हैव स्पोकन एट लेंथ ऑन दैट, एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन योर ओन एरिया, having understood that you need to engage with literature to develop a solid foundation, even to develop a solid hypothesis for your research or a research question, you need to go through that literature. You need to identify your scope कि क्या मुझे करना है और क्या रिसर्च नहीं करनी। वन ऑफ द मेजर इश्यूज इन रिसर्च इज कि आप अपने स्कोप से बाहर चले जाते हैं। मैं जी पाकिस्तान में जो है ना वो औरतों की प्लाइट पे काम करना चाहता हूँ। इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क। आप पॉपुलेशन डिसाइड करें, ये तो हो ही नहीं सकता। एरियाज आइडेंटिफाई करें, लोकेलिटी आइडेंटिफाई करें, फिर अपने मीन्स और रिसोर्सेज को देखें, उसके अंदर आप जाएंगे। उसके लिहाज से आपको लिटरेचर देखना पड़ेगा, कौन कौन सा अवेलेबल है, कौन सा नहीं है। कुछ चीजें आपको खुद लिटरेचर में क्रिएट करना पड़ेंगी थ्रू थ्रू स्टेटिस्टिकल रिसर्च, सोशल साइंसेज रिसर्च। लेकिन जब आप लिटरेचर को जाते हैं तो ढूंढते कैसे हैं, सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है। और वो ऐसा लिटरेचर के जो जो नए दायरे में जा रहा है, नए एरिया में आप जा रहे हैं। तो हाउ डू यू, व्हाट डू यू डू? फॉर इंस्टेंस जरा थोड़ा से मुश्किल टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। Like for instance, if somebody wants to research on let's say the development of artificial intelligence, let's say in the Pakistani context, तो अब इसके लिए आपको लिटरेचर मतलब प्रोग्रेस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज, ये अब बिल्कुल डिफाइन हो गया स्कोप आपका, ये दायरे से बाहर नहीं है, मैनेजेबल है। इसके लिए लिटरेचर भी मुझे करना है, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू थिंक वन शुड टेक? सबसे पहले क्या करना चाहिए, कहाँ से लिटरेचर मिलेगा? Secondary sources. Go on to कहाँ से मिलेंगे? आपको आर्टिकल्स, जर्नल आर्टिकल्स वगैरह से, you start with that. I think that's not a bad idea. You get a lot of references and then you get primary sources. इसको रिवर्स कर लेता हूँ, उससे मेरा ख्याल है the point I'm trying to make will even become more significant, more emphasized. ऐसी रिसर्च कर रहे हैं कि जिसपे पहले बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की हुई है उस एरिया में, लेकिन आप जाहिर उसके अंदर कोई यूनिक एस्पेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं। लेट्स से आप काम कर रहे हैं ऑन, अभी दो नई किताबें आई हैं ऑन मौदूदी साहब्स इस्लामिज्म एक्टिविज्म, उस पे आप काम करना चाह रहे हैं। लेट्स से कि इट्स इम्पैक्ट ऑफ मौदूदीज इस्लामिज्म ऑन मॉडर्न पॉलिटिक्स। अब आप इस पे काम करना चाह रहे हैं, अब इस पे कहाँ ढूंढेंगे रिसर्च या ऑन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स? अभी डॉक्टर वसीम की किताब आई है, वसीम अहमद की, पाकिस्तानी कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान के नाम से, तो उसमें मौदूदी साहब का जिक्र है। हुमायरा इक़्तिदार की किताब आई है पाकिस्तान के ऊपर। तो ये दो किताबें अगर आप
इस टॉपिक पे मजीद फोकस करना चाह रहे हैं महज इस इशू के ऊपर कि मौदूदी साहब के इस्लामिज्म, उनके वेल्टन शाऊंग, उनका जो तसव्वुर दीन था उसका क्या इम्पैक्ट है मॉडर्न टाइम्स में इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, और इसके लिए लिटरेचर आप ढूंढना चाह रहे हैं तो कहाँ से कहाँ जाएंगे आप? सबसे पहले क्या चीज देखेंगे? I'm stumped. I thought that I would look at the latest journal writings on that topic. Which journal? Sort of search. I would go into the site that talks about journals in that field. Which उस site? field में अपने कुछ एक top के journals की एक list होती है, which usually you find in library sources. और आपको पता होता है कि ये मुस्तनद है, मुझे तो इस्लाम उसके journals का बड़ा important है मुस्तनद होना और मतलब credible होना, citable होना. Citable, हाँ जी. There are some established journals in that field where I would go and go by date. How do you know which journals are established and where do you look for the literature? There are accrediting agencies जिन्हें आप कहते हैं. There are some के publishable क्या है? इस रूट से आप जाएंगी तो वो तो आपको साल 1.5 साल तो 2 साल तो सिर्फ ढूंढने में लग जाएगा ना. नहीं, I think the libraries and HEC has done it for its own purposes, but I think international. How would you decipher कि कौन सा इनमें से रेलेवेंट ज्यादा है, कौन सा, क्योंकि इतना लिटरेचर है मधु साहब का, आप एक दिन बैठे सिर्फ मतलब विदाउट narrowing down yourself through some kind of engines, maybe through some kind of mechanism, maybe आप एक दिन भी बैठेंगे तो आपको एक दिन के अंदर 500-600 किताबें नजर आ रही होंगी और सोर्सेज नजर आ रही होंगे इस टॉपिक पे. That is true. How do you know? मतलब nobody can go through all of them. No. I don't know, Asif. What I do is I go to the net and there are हमारा digital library के sources में linked है, and you go by journals and you state a topic. मैं आपको interesting बात बताता हूँ. मेरे जब comprehensives हो रहे थे PhD के, तो मेरे वो अल-अज़हर के और जॉर्ज टाउन के थे वो PhD जो मेरे सुपरवाइजर थे. तो जॉर्ज टाउन से और अल-अज़हर से उन्होंने पढ़ा हुआ था. उन्होंने मुझे कहा कि इस्लामिक लॉ पे आप मुझे ना वो इतनी किताबें कॉम्प्रिहेंसिव के लिए हजारों आ गई होंगी. 100 उन्होंने कहा एनोटेट करनी होती है, 100 निकाल के दिखाएं. वो मैंने 100 बनाई. उन्होंने कहा ये कम है. उन्होंने कहा 200. फिर उन्होंने कहा ये भी कम है. मैं 300. जब तीसरी उन्होंने कहा तो मैं गुस्से में आ गया. मैंने कहा यार ये साहब जी खत्म ही नहीं कर रहे. तो मैंने 2 महीने लगा के 1000 किताबें एनोटेट कर डाली. 1000 किताबें. अब उनसे पढ़ी नहीं जा रही थी. तो उन्होंने तकरीबन 1 साल लगा दिया उनको प्रूव करने में, और करनी उन्होंने तकरीबन 100 के करीब थी. तो वो हाउ डू यू नो वेयर टू लुक, जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जो बात की थी ना कि यू हैव टू नेविगेट थ्रू दिस इंटेलिजेंट. पीपल विल जस्ट गो अप, पुट इट ऑन शेख, आस्क शेख गूगल फॉर एवरीथिंग. अब गूगल तो देता ही चला जाएगा. दे विल गो टू विकिपीडिया, वो देता ही चला जाएगा. आप अच्छा चले, अगर आपको अपनी फील्ड का पता है, मसलन ये सवाल अगर आप मुझसे पूछें तो हमारी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो हमें सिखाई जाती थी PhD में और मास्टर्स में एट McGill, तो उसमें वो कहते थे कि जी हमें बता दिया जाता था कि यार ये कुछ बेसिक पैराफर्नली आपका हर फील्ड में होता है. दैट इज इम्पोर्टेंट कि मसलन इसमें अगर आप मौदूदी साहब के पास काम करने जा रहे हैं तो एक सर्च इंजन है, एक्चुअली तो इंडेक्स है, लेकिन वो अब मैनुअल शक्ल में तो यहाँ किसी भी लाइब्रेरी में नहीं है. कायदे-ए-आज़म लाइब्रेरी में होती थी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक सोर्स मिल जाती है विच इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव. हार्डली एनी यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान हैज इट. वो है इंडेक्स इस्लामिकुस. तो इसमें अंग्रेजी जुबान में जो भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है ऑन इस्लाम वो आपको मिल जाएगा, और उसके आपको उसमें जो किताबें लिखी गई हैं, बुक रिव्यूज लिखी गई, वो भी मिल जाएंगी. इसी तरह हदीस के ऊपर जो है वो फ्रेंच में है, कुरान के ऊपर जर्मन में है, वो आपको इंजन मिल जाएंगे. अगर आप जनरल आर्टिकल्स देखना चाहते हैं तो E.J. ब्रिल की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम है, उसमें आपको टॉपिक्स में एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी मिल जाएगी. बट इवन दिस लिटरेचर इज टू वास्ट. अब फॉर इंस्टेंस यू टू राइट अ पेपर, आपके पास 1 साल है पेपर लिखने के लिए, अच्छा पेपर. तो उस 1 साल में तो आप ये अगर इसको ब्राउज भी करना शुरू करें तो 3-4 महीने तो आपके सिर्फ ब्राउज करने में लग जाएंगे, फिर भी आपको पता नहीं लगेगा. सो व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप?
वो इकबाल का एक शेर है जो मुझे अक्सर याद आता है कि इन तौर हकीमी नीस्त दामोने खलीमी गिर, یک بنده صد بنده دریا مست یک بنده ساحل सॉरी 7 बंदा साहिल मस्त एक बंदा दरिया मस्त. तो वो इकबाल का जो शेर है ये मेरा ख्याल है बड़ा अहम है इस हवाले से कि वो कहते हैं कि इन तौर हकीमी नीस दामोने खलीमी गिर, कि ये जो कहानी ये आम हिकमत का काम नहीं है, ये जरा ऊंचे लेवल का काम है. तो किसी ऐसे आदमी को जिसने खुद मुकालमा किया हो ना बिलावेट से, तो उसका दामन पकड़ है, क्योंकि 100 बंदे जो साहिल पे खड़े हुए हैं, 7 बंदाई दरिया 7 बंदाई साहिल मस्त एक बंदाई दरिया मस्त, वो उस एक आदमी के बराबर नहीं होता कि जिसने दरिया में गोता लगाया होता. The most important thing that in Western universities they teach us to do, उसको कहते हैं यार बेटा आप ये इंजन आपको पता लग गए हैं, जर्नल्स आपको पता लग गए हैं, लेकिन वो भी हजारों की तादाद में है. And you have to pick out what is vis-a-vis your specific topic the most relevant thing for you. तो आप वो बंदा है, वो दामाने कलीमी गिर, जिस बंदे ने खुद उस बिलावट के लिए गोता लगाया हुआ ना, तो one of the best ways of doing this is to look at the top-notch universities. And look at the top-notch professors in that area. इसीलिए जो आइडिया आप सब लोग माशाल्लाह रिसर्चर्स, आप जानते हैं कि रिसर्च का तस्वुर जो है वो जिस तरह वो तसव्वुफ के बारे में कहते हैं ना कि शेख के बिन जो है वो सलूक नहीं इख्तियार किया जा सकता. आपके साहबजादे यहाँ होते जो मेरे साबिका शागिर्द हैं और अब माशाल्लाह डीन है लम्स में, तो वो उनसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हमारी होती थी इस मौजू पर. तो वो कहते हैं ना कि मुर्शिद के बगैर नहीं रास्ता मिलता. तो वो आपको वो तसव्वुफ में तो वो एक और दायरा है, लेकिन यहाँ पर तो इट अप्लाइज 100%. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लुक अप द टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज, अपनी फील्ड में जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, शॉर्ट लिस्ट देम, को 20 एक यूनिवर्सिटीज आप निकालें, उनमें प्रोफेसर्स ढूंढें जिनके प्रोफाइल आपके रिसर्च, उनके रिसर्च इंटरेस्ट लिखे होते हैं, आपके रिसर्च इंटरेस्ट से मैच करते हैं. उसमें उनमें से जो किताबें आपके एरिया से, जिन्होंने रिसर्च आर्टिकल्स या किताबें आपके एरिया के करीब करीब लिखी हुई हैं, you start browsing them, then you narrow down further and you read the stuff of some of the most important writers in the field. जब आप वो पढ़ चुके होते हैं, and one of the best ways of getting it, वो लोग कहते हैं, मुझे अक्सर कहते हैं जी वो क्यों जवाब देगा, अगर आपने उसकी किताब पढ़ी है प्रोफेसर, वो जो जितनी अच्छी लेवल की रिसर्च होती है, जितनी डीप रिसर्च होती है, उतना ही मुश्किल होता है उस प्रोफेसर के किताबों का पढ़ा जाना. आम आदमी नहीं पढ़ता. तो अगर आपने उसको पढ़ा है उनकी किताबों को और उस पे कोई छोटा मोटा रिव्यू भी लिख दिया, बुक रिव्यू इज इजी राइटिंग, यू कैन राइट अ बुक रिव्यू. उसमें भी आप कुछ जर्नल से मदद, और लोगों ने भी रिव्यूज लिखे होंगे, वो आपको मिल जाएंगे एकेडेमिया से, जे स्टोर से और दूसरी जगहों से. आप निकाल के उनके मज़ामीन पर अगर क्रिटिकल स्टडी करके, जो मैंने पहले आपको बताया था, अगर आप उसके ऊपर एक अच्छा 2-3 अच्छे मज़ामीन उनके एरियाज मिलते हैं, तो प्रोफेसर गेट्स इंटरेस्टेड इन योर वर्क. And this person who has spent years, because you have to, in Bernard Shaw's words, you have to stand on the shoulders of others. एकेडेमिया में आप जितना ज्यादा सिनर्जी की जरूरत होती है, एक दूसरे के काम से मदद लेने की जरूरत होती है, लिंकेजेस कायम करने की जरूरत होती है, वो शायद किसी जगह पे भी नहीं होती. हमारे यहाँ तो वो पीएचडी करके आ जाता है बंदा, तो वो कहता है यार मेरे तो कितने स्टील ही ना कर ले आइडिया. But some of the best researchers have developed their ideas through that kind of discussion with their professors, with their peers. So you talk to your professors and your peers, even if you are a professor yourself, आपने उस एरिया में नहीं काम किया हुआ. हर आदमी जो है वो बहरहाल जब रिसर्च शुरू करता है तो तिफले मकतब ही होता है, उसको दोबारा सरे नौ जो है वो उसी ह्यूमिलिटी के साथ शुरू करनी होती है अपनी बात. तो those are the people, you have contact with 5-6 professors in that way. Maybe you have spent about 2 months, 3 months doing that. लेकिन वो नैरो डाउन करके, आपको याद होगा आप जब अपनी किताब लिख रही थी और उसका वो जो आप बिब्लियोग्राफी डेवलप कर रही थी, तो हमारी डिस्कशन हुई, क्योंकि वो मेरा दायरा था, आप जाहिर एजुकेशन के दूसरे दायरे में जा रही थी, तो वो इंटरेक्शन से बहुत फायदा होता.
I learned a lot from your book, and I'm sure I must have been able to narrow down things for you कि जो आपको देखने की जरूरत नहीं है. तो पहला स्टेप वो है. दूसरा स्टेप ये है कि जब आपने ये बिब्लियोग्राफी डेवलप कर ली तो प्रोफेसर से सबसे पहले, अच्छा ये चीजें मिस कर देते हैं, एंड इसको मैंने देखा है मिस करने की, प्रैक्टिकल फील्ड में मिस करने की बहुत बड़ी वजह जो है हमारी थोड़ी सी स्नॉबरी होती है. पीएचडी कर लिया, कोई तमगे तुमगे मिल गए 2-4, तो हमसे ये नहीं कहा जाता उसके सामने कि जी कुछ चीजें मैंने अभी सर्वे लेवल पे भी नहीं पढ़ी. तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जी मुझे आप सर्वे लिटरेचर पहले बता दें. सर्वे लिटरेचर एज यू ऑल नो रिलेट्स टू दैट काइंड ऑफ लिटरेचर कि जिसमें जिसमें बेसिक्स अस्यूम कर ली जाती है. मसलन ये अभी पिछले सेशन में जो हर्मेन्यूटिक्स की मैं बात कर रहा था, मैं जब मास्टर्स करने गया तो वो एवरीबॉडी वाज टॉकिंग दैट लैंग्वेज. हालांकि मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स भी 6 महीने का कर चुका हुआ था, लेकिन वो लैंग्वेज ही मुझे समझ में आ रही थी. वो बाहर तो वो हाई स्कूल में पढ़ा चुके होते हैं, फ्रॉम प्री सोक्रेटिक स्कॉलर्स टू जैक डर्रिडा एंड मिशेल फूको एंड लकान एंड व्हाट हैव यू, दे हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस, सो दे आर स्पीकिंग इन दैट लैंग्वेज. अब वो मुझे सर्वे करने के लिए आई टॉक टू सम कोलीग्स, कन्फेस्ड कि यार ये चीजें मैंने तो नहीं पढ़ी हुई, मैं तो सिर्फ अरबी फारसी जानता हूँ, तो मुझे तो ये नहीं आती चीजें. तो मुझे मैथ्स आती है, मुझे अंग्रेजी आती है, अरबी आती है, फारसी आती है, मुझे ये चीजें पता नहीं है. तो उन्होंने दे गेव मी अ लॉट ऑफ इजी डिवाइसेस, सर्वे डिवाइसेस. ऑक्सफोर्ड ने बड़ी अच्छी सीरीज डेवलप की है, आप लोगों ने बहुत ने देखी होगी. ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ऑलमोस्ट एनीथिंग अंडर द सन. Brief introduction to Islam, brief introduction to hermeneutics, brief introduction to philosophy, brief introduction to Derrida, to Foucault, to Aristotle. So that kind of survey literature is very important because you need that overview. And survey literature, not just through these introductory books, but also perhaps through encyclopedic entries. जिस तरह मैथमेटिक्स की मुझे मालूम है कि मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी इंसाइक्लोपीडिया में बेसिक सर्वे लिटरेचर मौजूद होता है. फिलोसफी की है, रिलीजन्स की है, इस्लामिक स्टडीज की है, तो वो सर्वे लिटरेचर में आपको पूरा ओवरव्यू फ्रॉम क्लासिकल टाइम्स, यानी इस्लामिक स्टडीज में क्लासिकल टाइम्स 8-9 सेंचुरी से शुरू होता है, और फिर मॉडर्न, फिर वो यानी मुतवसत दौर तक, बनु अब्बास के मुतवसत दौर तक जाता है. तो वो पूरे का पूरा आपको सर्वे वहां तक भी दे देगा, और फिर ओरिएंटल मुस्तशरिकीन तक, ओरिएंटलिस्ट तक वो आपको लेके पूरा सर्वे आ जाए. दैट सर्वे, दैट ओवरव्यू is very, very important if you want to really know that you're not reinventing the wheel, you're not saying what has already been said, and that you're placing your research in the right context. And also avoiding plagiarism, because sometimes plagiarism is inadvertent. आपको पता भी नहीं लगता, आप दूसरे बंदे ने बात की होती है, you have to prove कि यार मुझे नहीं मालूम था. I mean, in the course of my research, I had no idea कि ये already किसी ने काम किया हुआ. तो पहला चीज जो है फाइंडिंग द पर्सन, द राइट पीपल. द सेकंड इज गोइंग थ्रू डेवलपिंग सर्वे लिटरेचर एंड द पैराफर्नलिया. जो उसका पैराफर्नलिया आपको चाहिए, जिसमें जो ये एनसाइक्लोपीडियाज और इस तरह की चीजें होती हैं, जो डिवाइसेस हैं, सर्च इंजन्स हैं. अच्छा, सर्च इंजन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं मॉडर्न टाइम्स में. यूनिवर्सिटीज को मेरा ख्याल अब चाहिए, जो मैं लम्स में भी कोशिश कर रहा हूँ, पहले मैं खालिद इसाक साहब ने हमें लाइब्रेरी को डोनेट कर दी थी. उसके बाद माय फैकल्टी हैज बीन ट्राइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. जब मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, मैं बहुत कोशिश की, अब भी जो है इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं काफी कि कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज जो है ये हासिल की जाए. यानी ये लिंकेजेस जो है सर्च इंजन्स का, जे स्टोर के साथ तो सारी करते हैं, लेकिन हार्वर्ड के साथ आप थोड़ा सा पेमेंट करके, होती है वो एक्सपेंसिव, लेकिन आप देखें, मैं आपको आई विल गिव यू वन एग्जांपल. मैं एक मकाला लिख रहा था इन्हीं पे, मदूदी साहब पे और वहीदुद्दीन खान साहब पर. तो एक किताब थी वहीदुद्दीन खान साहब की जो मैं ढूंढना चाह रहा था, तो वो मुझे मिल नहीं रही थी, वो कनाडा में नहीं थी. अब सिटिंग एट माय डेस्क थ्रू ILL, इंटर लाइब्रेरी लोन, it took me about half a day to realize कि पूरे कनाडा में कहीं नहीं है, just at my desk. फिर मैंने पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में took me 1 day to search के पूरे, और वो सिर्फ हार्वर्ड में थी, और वो कमिटमेंट थी उनकी मिगिल में कि वो मुझे ILL के थ्रू 15 दिन के अंदर किताब मेरे डेस्क के ऊपर होगी, और वो 15 दिन में मेरे डेस्क पे थी. तो वो हम 15 दिन में डेस्क पे तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन कम से कम मुझे ये बता दें कि ये किताब है.
सर्च इंजन में अगर मैं ढूंढना चाहूँ किताबें तो वो लिस्ट आ जाए मेरे पास। I'm not asking for the book itself, वो मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे, PDF जिंदाबाद, and these are the other you know sources जो students ने develop की हुई हैं, जो जिसमें PDFs मिल जाती हैं, तो वो सभी को पता है कहाँ कहाँ से लेनी है, तो वो मिल जाती है, लेकिन किताब का पता लग जाए। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जो बात कही थी, जो one of the first lexicographers of English language, he said knowledge is of two kinds, one is you know something, the other is you know where to look for it। तो ये इस पे यूनिवर्सिटीज को इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट देयर आर लिंकेजेस डेवलप्ड विद अदर यूनिवर्सिटी सर्च इंजन्स। प्रिंसटन ने क्लोज किया, शायद ओपन कर दिया था, बाज यूनिवर्सिटीज के अभी भी ओपन है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि विच यूनिवर्सिटीज, लाइक मिगिल का मेरा ख्याल है ओपन है अभी भी, प्रिंसटन का शायद ओपन है। अमेजिंग रिसोर्स, यू गो टू देयर सर्च इंजन, आप सब्जेक्ट टाइप करें, उस पे रिलेटेड तमाम एकेडमिक किताबें को मिल जाएंगी। तो आपके प्रोफेसर ने जो पॉइंट आउट की किताबें, उसकी साइटेशन वगैरह आपको मालूम हो जाएगी, देन यू कैन लुक फॉर द बुक। सो दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। अगली बात यह है कि जब आप मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपने मुझे कहा था 10 मिनट छोड़ दूं, बल्कि मैं 15-20। आसिफ, मुझे एक बात तो समझ आई, यू आर सेइंग दैट knowing where to look for a book, knowing what has already developed, been said and written about the topic at hand that you're writing about, first is finding what has been written, how it has been written, will help you lower your chances of plagiarism, which could be inadvertent. ये तो ethics की बात से Plagiarism and going beyond your scope, सबसे बड़ा जो पिटफॉल होता है किसी भी रिसर्चर के लिए, कि हम अपने दायरे से बाहर चले जाते हैं। ठीक, पढ़ने में भी बाहर चले जाते हैं। मतलब आई वुड नॉट लाइक टू रीड अ बुक के जिसको मुझे जिंदगी में मेरे काम ही नहीं आना। नहीं आनी, ठीक। So you have narrowed down your search, and so one is searching for the right thing and searching the right way, and then the other is that by doing that you are not repeating something that has already been done. ये तो ethics की बात। So what other points are important for research ethics? So once you have this kind of you've gone through annotation, अब अगला मरहला जो होता है वो ऑब्वियसली है कि इसके अंदर भी नैरो डाउन करना पड़ता है आपको, कि कितनी चीज मुझे कितनी पढ़नी है। वो एक्सपीरियंस रिसर्चर्स हैं आप सब लोग, तो वो आपको अपने एक्सपीरियंस से भी अंदाजा होता है, कुछ दायरा अपने सुपरवाइजर की गाइडेंस से अंदाजा होता है, या प्रोफेसर से डिस्कस की ये इतने पढ़ने की जरूरत है, इसको सारा पढ़ो, इसको सारा ना पढ़ो। दैट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको इग्नोर कर देते हैं। वी ट्राई, सम पीपल विल ट्राई टू रीड एवरीथिंग, सो दैट्स नॉट नेसेसरी। आपको कुछ चीजें ब्राउज करनी होती हैं, कुछ चीजों पर फोकस करना होता है। तो डिस्कशन विद पीयर्स, विद यू नो सीनियर प्रोफेसर्स, विद other people who are guiding you, जिस तरह के मैंने जिक्र किया, अच्छे प्रोफेसर, वो आपको एक पूरा मरहला उसमें से निकल जाता है। Then there are other kinds of book which you just need for referencing and works which, तो उसमें आपको कमोबेश हर किताब के book reviews मिल जाते हैं। Not using book reviews is a bad idea, क्योंकि बुक रिव्यूज के अंदर आपको ये पता लग जाता है कि दूसरे लोग इस किताब को क्रिटिकली कैसे देख रहे हैं। I guess you made a very important point. So I mean, instead of my developing an idea, मुझे याद है जब मैं पहला पेपर जब मैंने लिखा था बाहर, तो वो मैंने जितनी भी किताबें वो जिन साहब, वो मौदूदी साहब पे लिखना था मुझे, तो उनकी सारी वो किताबें जिनमें मैं काम कर रहा था मैंने ओरिजिनल में पढ़ी हुई थी। उनके जो ओरिजिनल नाकिदीन थे वो भी पढ़े हुए थे। लेकिन यू नो माय सुपरवाइजर सेड के बेटे ये आपका जो मसला है, ये जो आपका व्यू है, आपने ओरिजिनली पढ़ा होगा, शायद जो जिन रिव्यूअर्स की आप बात कर रहे हैं वो ओरिजिनली भी पढ़ नहीं सके होंगे, लेकिन हाउ हैज द वर्ल्ड, हाउ हैज द आउटसाइड एकेडेमिया क्रिटिकली सीन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉट गोइंग फॉर दैट इज अ बैड आइडिया। उनको पढ़ के, मतलब अब मेरी बल्कि आदत उलट हो गई है, मैं किताब पढ़ने से पहले दूसरों को जो उन पे रिव्यूज अच्छे रिव्यूअर्स जो हैं, जो मसलन मेरी फील्ड में इंडेक्स इस्लामिक से मालूम हो जाते हैं, या प्रोफेसर गाइड कर देता है कि ये 4-5 लोगों ने अच्छे रिव्यूज लिखे हैं क्रिटिकल, वो आप पढ़ लें। अगर ऑथर ने उसका जवाब दिया वो पढ़ लें, देन यू प्लेस द बुक इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। और उसमें जरूरी नहीं रहता कि फिर आप उसकी हर चीज को पढ़ें, आप उसको फिर आप उसमें से पिक एंड चूज कर सकते हैं, यू कैन जीरो इन। फाइनली व्हेन यू एक्चुअली बिगिन साइटिंग योर स्टफ,
तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो 3 चीजें जो जिसपे मैं स्ट्रेस करता हूँ कि ये तीसरी को बाज़ दफा इग्नोर कर देते हैं और बाहर बहुत एम्बैरेसिंग होता है. इट्स नॉट जस्ट द कंटेंट और डाटा, इट्स आल्सो द स्टाइल. कंटेंट, डाटा एंड स्टाइल. आप कंटेंट किसी का बोरो करें, चाहे वो फिगर्स, फैक्ट्स फिगर्स हैं या फिलोसॉफिकल एनालिसिस है, तो वो भी ज़ाहिर है साइट होना चाहिए. डाटा है तो वो भी किसी और का आपने लिया तो साइट होना चाहिए. समटाइम्स द स्टाइल, उस स्टाइल को चेंज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी का एक मखसूस अंदाज होता है. तो वो मुझे याद है कि वो हमारे एक दोस्त होते थे, तो मैं कई दफ़ा मदद करता था पाकिस्तानियों की और ईरानियों की, जो ज़रा नई अंग्रेज़ी अच्छी होती थी. तो एक दफ़ा मेरे एक दोस्त को सुबह कहा कि ये अल्फाज आपने क्यों इस्तेमाल किए, तो करते ही ज़रा आसिफ इस्तेमाल. तो बी केयरफुल अबाउट योर डिक्शन, यू नो. मतलब वो आप अगर बोरो करते हैं तो उसको थोड़ा सा पैराफ्रेज कर लें. पैराफ्रेजिंग इज इम्पोर्टेंट. इट्स एन इम्पोर्टेंट स्किल that needs to be learned. Finally, the last thing that I would like to talk about is one major pitfall जो हमारे रिसर्चर्स में बहुत देखे. एमफिल के बच्चे आते हैं मेरे पास बहुत सारे हेल्प लेने के लिए. पेपर्स अच्छे लिखे होते हैं उन्होंने, लेकिन वो गलती ये कर रहे होते हैं कि वो और साइटेशंस भी होती हैं, साइट किया भी होता है, लेकिन दे फॉरगेट it's not just about citing what you have referenced. It's also about corroborating your own statement with references. ये एस्पेक्ट मिस कर, यानी जहां उसने बोरो किया किसी को, वहां पर प्रॉपर तरीके से साइट कर रहा है, जो भी आप सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, CMS, MLA, APA, जो भी आप कर रहे हैं फॉलो, तो वो साइट कर रहा है ठीक तरीके से. एंड यू नीड टू लर्न दोस. अब तो खैर वो ज़ोटेरो वगैरह भी आ गए, जिससे वो कर भी देते हैं उस पे आपको वो और ऑटोमेटिकली. लेकिन यू स्टिल शुड हैव द मैनुअल विद यू. अगर आप शिकागो मैनुअल यूज कर रहे हैं तो उसको रख लें अपने पास. केट तुराबियन यूज कर रहे हैं तो रख लें. MLA कर रहे हैं तो उसको रख लें, क्योंकि बाज़ दफा वो गलतियां उसमें भी हो जाती हैं, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रांसलिटरेटिंग. और ट्रांसलिटरेशन के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात मुझे करनी है, दैट इज वेयर आई विल क्लोज माय सेशन. तो जब आप साइट कर रहे होते हैं तो वो तो ठीक कर रहे होते हैं, उसमें पैराफ्रेज कर रहे हैं, वो भी ठीक कर रहे हैं, कंटेंट को भी साइट कर रहे हैं, डाटा को भी साइट कर रहे हैं, लेकिन जो असर्शंस खुद कर रहे होते हैं वो बाज़ार साइट नहीं करते. मसलन मैं अभी एक पेपर आया मेरे पास, तो उसमें लिखा था कि मुस्लिम्स जनरली बिलीव दैट a woman should do such and such thing. And there was no validation for that. Yeah. तो मैंने कहा बेटे ये डाटा कहाँ से लिख लिया? कहाँ से मिल गया? मुस्लिम जनरली बिलीव दैट. केड़े मुस्लिम्स, कहाँ के मुस्लिम? मुस्लिम्स इज अ ह्यूज कंस्ट्रक्ट. Muslim is a construction. It's a socially constructed idea. Which Muslims are? बरेलवी, देवबंदी, कहाँ के, किस इलाके के, कौन, और इस पे डाटा कहाँ से आया आपके पास? किसी को साइट. तो your own assertion, people, researchers will sometimes know by training कि जो मैं बोरो कर रहा हूँ वो मुझे साइट करना है, डाटा, कंटेंट या स्टाइल, लेकिन जो मैं assert कर रहा हूँ वो छोड़ देते हैं. तो वो बड़ा important है. Finally, last word for people who are in the humanities stream or social sciences stream and working with different languages. मुझे क्योंकि 6 ज़बानों में काम करना होता है, तो मेरा ये बहुत बड़ा मसला है, और इसको भी रिसर्चर्स बहुत. अभी एक वो मेरे पुराने शागिर्द ने वो PhD मुकम्मल की, तो बड़े शौक से उसने लगाया तो फेसबुक पे, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से उसने की, गुड PhD, बल्कि he did it on one of my teachers. तो उसने फेसबुक पे लगाया, तो मैंने सब कांग्रेचुलेट कर रहे थे, तो मैंने उसका वो देखा. तो अब मैं उसको कहना नहीं चाह रहा था, दिल नहीं तोड़ना चाह रहा था, तो मैंने उसको मैसेज लिखा कि बेटे ये इसका कवर पेज जो है, टाइटल पेज, ये एडिटिंग से पहले का है या बाद का है? तो वो समझ गया, कहता है सर मैं घर आके बात करता हूँ. तो वो ट्रांसलिटरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हेन यू आर वर्किंग विद डिफरेंट लैंग्वेजेस. मसलन देखिए, आप ये लफ्ज, ये नाम जो है, अब ये देखिए मैं मिसाल देता हूँ. आपने लफ्ज लिख दिया, आप टेक्निकल पेपर लिख रहे हैं, आपने समीना लिख दिया, तो अब ये कौन सी समीना है भाई? ये वाली समीना है या ये वाली समीना है? ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि इसका मतलब है मोटी, इसका मतलब है प्रेशियस. ठीक.
Good. जब तक इसको प्रॉपर तरीके से जो भी हैं बाज दफा जो लोग लिंग्विस्टिक्स में काम कर रहे होते हैं, दे नीड टू नो आईपीएस, इंटरनेशनल फोनेटिक सिंबल्स। आपको पता होना चाहिए कि मसला का प्रोनाउंसिएशन पे ही काम करें, दैट्स योर एरिया, एंड यू नीड टू प्रॉपरली यू नो so you need to understand that this is a schwa and how is it pronounced, and you need to convert that, वरना आप गलती करेंगे। आपका इसी तरह इन फील्ड्स के अंदर जिनमें 2 ज़बानें, 3 ज़बानें, 4 ज़बानें, खास तौर पर हमारी जो मशरकी ज़बानें हैं, फारसी, उर्दू, तुर्की, अरबी और हिंदी, तो इनका तर्जमा करना, इनका ट्रांसलिटरेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से करें। और मसला प्रोनाउंसिएशन नहीं है, मसला प्रोनाउंसिएशन नहीं है। जैसे कि मार्शल हॉडसन ने कहा, असल मसला ये इसलिए किया जाता है स्कॉलरली पेपर्स में कि रिवर्सिबिलिटी इज द इशू। कि मैं जब अपने ही नाम को कन्वर्ट करना चाहूं अगर वापस, तो मेरे मुखातब को ये मालूम हो कि भाई ये जो मैंने लिखा है ये वाला आसिफ था, क्योंकि आप अरबी में लिखें अना आसिफ, इसका मतलब आई एम सॉरी, या ये वाला आसिफ था, इसका मतलब है स्टॉर्म का लासिफा, या ये वाला आसिफ था जिसका असल तलफ़ुज़ भी जो है वो आसिफ है, अगर शम्सुर रहमान फारूकी साहब मेरी बात नहीं मानते थे, लेकिन इसका तलफ़ुज़ आसिफ। तो ये जब तक आप डिसाइफर करके नहीं देंगे, एंड यू डोंट, अगर आप आसिफ लिखना चाहते हैं तो इट हैज टू बी ट्रांसलेटेड प्रॉपर्ली, क्योंकि ये रिवर्स नहीं कर सकेंगे आप उसके बाद। और जब रिसर्च आर्टिकल्स आप लिखेंगे और नामों के साथ, किताबों के साथ ये सलूक करेंगे, तो आपका आर्टिकल बाज़ दफ़ा बिल्कुल ऐसी एम्बिग्विटीज पैदा कर देता है कि वो पीपल डोंट नो हु यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। सो ट्रांसलिटरेशन फॉर सर्टेन डिसिप्लिन्स इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल दैट नीड्स टू बी लर्न। पीएचडी कर लेते हैं लेकिन वो पता नहीं होता कि और ट्रांसलिटरेशन गलत हो रही, और उसके नतीजे में मेजर ब्लंडर्स होते हैं। सो दिस इज अ माइनर पॉइंट दो, but it still needs to be mentioned. Yeah, you taught me when I came to you with my article, and I was very surprised that that was a field I hadn't known about before. Yeah, that's true. I'll just leave the rest of the time for Q&A. I think it was a very interesting session in which you talked about also how to locate sources and how all those different steps in a research and how you do them well also helps you avoid plagiarism. एक सिर्फ मैं पॉइंट और बताना चाहूंगा, ये टर्निटिन वगैरह से जो है ना, उसमें that was a question. जी, बाज़ दफा वो मतलब आपको मालूम है कि ऐसी चीजें डाल देता है कि जो वो उनका जो, क्योंकि वो एक तरह की AI है ना, तो मैकेनिकल है भी, तो बाज़ दफा वो चीजें डाल देता है कि जो नहीं उस दायरे में आती, लेकिन वो सिमिलैरिटी की वजह से उसको कर देता है। तो यू हैव टू रीड इट। बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो हमारे यहाँ बहुत रिसर्चर्स कर रहे हैं इस वक्त, मेरे अपनी दोस्तों ने अभी दो किताबें आई, मैं उनको पढ़ रहा था, उसमें मुझे बड़ी हेविली उन्होंने साइट किया हुआ था। तो उन्होंने खास तौर पर कहा कि आसिफ साहब आपका बड़ा काम ने बड़ा इस्तेमाल किया, उनकी मेहरबानी भी थी। तो मैंने बड़ा खुश हुआ देख के कि जी जगह जगह उन्होंने साइट किया था, और वो साइट जब तफसील से पढ़ी किताब, तो मालूम हुआ कि वो ऊपर के 2-4 जुमले साइट करते थे, नीचे पूरे का पूरा आइडिया जो है वो मेरा ही होता। लेकिन वो इतना ही काफी समझते थे कि ऊपर की कोई बात बयान कर दी, नीचे जो उसका तज्जिया जो मैंने किया, तो भाई जो भी पढ़ेगा दोनों का तकाबुल करेगा, वो उस मुताले में तो पता लग जाएगा उसको। तो मगर जो नहीं करेगा उसको ये होगा कि कितना जबरदस्त इंटरप्रिटेशन। आप साइट पूरा करें, उस पे अपनी क्रिटिक ऐड करें, क्योंकि ये चीजें पढ़ने के नतीजे में किसी न किसी स्टेज पर वाज़ेह हो जाती हैं। तो अगरचे ये मुश्किल है इसको डिसाइफर करना, जब तक आदमी दोनों किताबें ना पढ़ जाती है। सारी तो कोई नहीं पढ़ता, लेकिन कहीं ना कहीं वो आदमी पकड़ा जाता है अल्टीमेटली। अच्छा, इसमें एक तो प्रॉपर फॉर्म ऑफ साइटेशन आ गई, वो तो आपने पहले ही बात में अपनी यू टॉक्ड अबाउट इन योर टॉक दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटेशंस फॉर डिफरेंट डिसिप्लिन्स
MLA हो सकता है, हार्वर्ड की citations हैं, शिकागो की वे ऑफ citation है. So you have to be sure for your discipline what is the most appropriate, and sometimes for the journal for which you are putting up the publication, what do they demand? So you have to. Generally speaking, philosophy and religion would use Would fall CMS, under Chicago Manual Style. आमतौर पे social sciences APA use करता है, literature में आमतौर पे MLA इस्तेमाल होता है. But as you said, it's important to know through your journal what form you are going to go for. तो आपने उसको follow करना है, and we will be covering those in different other sessions. फिर उसमें एक सवाल कि हाउ टू सेल्फ प्लेजरिज्म का दो तरफ से आया हुआ है कि सेल्फ प्लेजरिज्म क्या है और उसको कैसे आपने करना है. उसके अलावा citation के ऊपर ही है, to develop a bibliography. I think you have covered those points in your talk. So I think self plagiarism के ऊपर दो topics हैं. और एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि मुझे समझ नहीं आई, हाउ टू कॉपी अ रिसर्च पेपर विदाउट प्लेजराइजिंग, इज इट एथिकल? एंड आई एम लाइक मार्वलिंग एट द आयरॉनिकल यूज ऑफ द वर्ड्स. ये बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है. अच्छा, so you will respond first to self plagiarism and what does that mean and how do you reproduce your own material? Thank you so much for that question. ये मुझे मेंशन करना चाहिए था, ज़हन में नहीं रहा. क्योंकि ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा मसला है. क्योंकि बहुत सारी रिसर्च जो है वो मैं इस डर से पब्लिश नहीं करता कि ये फिर सेल्फ प्लेजरिज्म के दायरे में आ जाएगी. वो छुपा के रखी होती है कि फलां मौके पे इसको डालेंगे, वरना तो वो सेल्फ प्लेजर, वो अब इतनी मेहनत से कोई चीज हासिल की है तो उसको सेल्फ प्लेजरिज्म में आपने अगर पब्लिश कर लिया है कुछ अपना आर्टिकल, तो असल में वो रिसर्च जो ये जिस तरह की भी हैं, ये हायर एजुकेशन कमीशन टाइप की जितनी भी बॉडीज होती हैं, वो क्योंकि देखना चाहती हैं, यूनिवर्सिटीज देखना चाहती हैं कि नई रिसर्च आपने क्या की है. तो वो तासुर जो है, मैं जानता हूँ हमारे एक बड़े सीनियर दोस्त हैं, तो वो एक पूरा कोई 10-15 साल वो अपना एक मटेरियल प्रोड्यूस करते रहे, लेकिन उस जमाने में पाकिस्तान में ये साइटेशन वगैरह का रिवाज ही नहीं था. और वो पब्लिश हुई चीजें, लेकिन वो उस तरह से वो इंडेक्सेस में आई नहीं हुई. अब वो उसको रीचर्न करके नई रिसर्च के तौर पर, तो एवरीबॉडी थिंक्स कि यार बड़ी रिसर्च प्रोड्यूस हो रही है. तो द आइडिया इज कि आपने जो पब्लिश कर लिया है वो काम अगर आप कर रहे हैं, आप उसको बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करें जैसे वो कोई और ऑथर है. बिल्कुल ठीक. वो आप कोई और ऑथर है, उसको आप साइट कर रहे हैं, उसमें अपना कोई नई क्रिटिक आप ऐड करना चाहते हैं तो करें, क्योंकि वो वंस दैट हैज बीन पब्लिश्ड, so it's no longer your new research. Treat that research as you would treat any other author. So that's how your words to the pleasure. बाकी ये जो दूसरा सवाल है ना, ये बड़ा ही pertinent सवाल है. दयानतदारी के साथ मैं यहाँ बैठ के confess करता हूँ, मुझे याद है मेरा जो thesis था McGill का, उस पे वो शीला मैकडोनो was the first woman to get a PhD in Islamic studies in Canada. तो उन्होंने लिखा था कि जी वो इजमा वगैरह पे मैंने काम किया था कि ब्रेक थ्रू कर दिया उन्होंने, मतलब पहली दफा इस्लामिक हिस्ट्री में. बहुत उनके इस तरह के कमेंट्स थे, बड़े गैर मामूली. जाहिर एक स्टूडेंट के लिए बहुत वो इनकरेजिंग बात होती है. तो मुझसे बाद में कुछ लोग पूछा थे जी आपने तो ब्रेक थ्रू कर दिया. मैंने कहा भाईजान, ब्रेक थ्रू जो है ना, वो पूरे को 250-300 सफे की रिसर्च में जिसको आप ब्रेक थ्रू कह रहे हैं, वो जो मेरी इंटरवेंशन है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपना लाम लगाने की बीच में अपना जो राग मैंने अलापा है बीच में, जो मेरी है, वो को 300 सफे के अंदर बहुत मुश्किल से 2 पेज बनते हैं, शायद इससे भी कम. बाकी जो कुछ है, आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ अदर पीपल. जो मेरी इंटरवेंशन है, जहां मैंने कोई नई एडिशन की है, कोई नई बात की है जो पास्ट में कोई नहीं कर सका. तो वो एक लतीफा है इसके बारे में कि इफ यू कॉपी फ्रॉम वन बुक दैट्स प्लेजरिज्म, इफ यू कॉपी फ्रॉम मेनी दैट्स अ पीएचडी. तो ये बात खैर इतना खुलम खुला मत कह. नहीं खुलम खुला ही कहना चाहिए ना ये. तो वो, लेकिन बहरहाल वो किताबें पढ़ी हैं उसने, तो कॉपी किया है ना, उसमें रेलेवेंट चीजें निकाली हैं तो पढ़ी है. द ट्रिक इज you just paraphrase that idea and add your own, मतलब आप paraphrase कर दें उसको, उसकी बात को बयान कर दें, उसके जिस्ट को,
और बीच में अपना उसी जगह पर कोई कमेंट, कोई तबसरा, कोई एनालिसिस, कोई क्रिटिक ऐड कर दें बीच में। Excellent. I think that's what you talked about in your first session in engaging with the text, that you not only know the text, but you engage with it and reflect upon it. But that has to be valid. You have to validate the claim that you are making in your. आप जब पढ़ेंगे कोई तासुर होगा ना आपका, कोई तबसरा होगा, इवन आपको पसंद आई है बात या नहीं पसंद आई, तो किसी इल्मी बुनियाद पर पसंद या नापसंद हुई है ना, वो अपना तबसरा जो इल्मी है आपका, जो इल्मी तासुर डालना है, वो भी ऐड कर दें। और वही बात के अज्यूम नहीं करना, मगर आपने उसको वैलिडेट जरूर करना। ह्यूमैनिटीज में तो पीएचडी हो ही नहीं, रिसर्च हो ही नहीं सकती इसके बगैर ना, जब तक आप ये जो जिसको कॉपी कह रहे हैं। तो बल्कि इंटरेस्टिंगली याक डगीडा जो है, जो इंटरप्रिटेशंस लिखी जाती थी उनके लिए कॉपी का लफ्ज यूज करते थे। याक डगीडा जो है वो ये कहते थे कि द ओरिजिनल इज क्रिएटेड बाय द कॉपीज। ये उनका बड़ा मशहूर जुमला है। अच्छा, कि असल में असल तो गायब हो जाती है, इंटरप्रिटेशन, मतलब इकबाल को हम कितने लोग ओरिजिनली जानते होंगे, वो उसकी इंटरप्रिटेशन के जरिए समझते हैं। बिल्कुल। पूरी जनरेशन चिश्ती साहब की वो तशरीह के जरिए से, शरह के जरिए से उनको समझा। तो so when you copy in that sense that you paraphrase it, you create a gist of it and you add your own critique or your own comment to it. एक बड़ा मजे का है कि would citing too much, ये जुनैरा है UET से, University of Engineering and Technology, कि would citing too much create an impression that this writer is not asserting or creating her own idea without, and his or her idea, and didn't even write sentences without citing. Zunaira, if you'd like to unmute and explain. Asif, आपको समझ आ गई ये क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बल्कि मेरे अपने जो उस्ताद हैं, जिनसे मैंने असल में अपने फनून सीखे सारे अरबी फारसी में, तो वो मेरे बारे में, क्योंकि पुराने हमारे जो उलमा हैं जिनसे मैंने पढ़ा, आई वाज लकी, आई स्टडीड अंडर उलमा एज वेल एंड अंडर वेस्टर्न स्कॉलर्स। तो हमारे उलमा तो बिल्कुल परवाह नहीं करते, वो पीएचडी को वैसे ही पागल समझते हैं। तो वो कहते थे एना दी जेडी असल तहरीर होंदी है ना, फुटनोट विच होंदी है, उत्ते ना पढ़िया करो। तो इनकी जो असल रिसर्च है वो होती है फुटनोट पे। तो वो है मसला जो वो बयान करें, दैट्स अ वेरी जेन्युइन रीजन। some people will overdo it, that's right। वो इतना ज्यादा फुटनोट में साइटेशंस डालते हैं, वो बताना चाह रहे होते हैं कि मैंने ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा। असल ट्रिक ये है कि जो मैंने कहा कि जो आप कंटेंट अगर किसी का बोरो कर रहे हैं, स्टाइल बोरो कर रहे हैं, स्टाइल विच इज वेरी विच इज यूनिक, विच इज सो डिफरेंट दैट इट हैज टू बी साइटेड, कि जी ये वहां से, तो उसका बेहतर तरीका आपको मालूम ही है कि इन्वर्टेड कॉमास में हम उसको कर देते हैं बजाय कि उसको हम अपने नाम से करें। तो जहां पर कंटेंट या डेटा आप किसी का ले रहे हैं उसको साइट करें। ये जो फुटनोट ऐड करने में हम ये बाज़ा बताते हैं कि मैंने ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, वो सिर्फ तब करना चाहिए जब वाकई आपके पास कोई ऐसी बात है कि जो मेन उसमें बयान नहीं की जा सकती और एक पूरा नया दरवाजा खुलता है। मुझे याद है मैंने एक ज़माने में काम किया था इनके ऊपर, इस्लाई साहब और वहीदुद्दीन खान साहब के ऊपर, तो उसमें मैंने हर्मेन्यूटिक्स के ऊपर एक नोट लिया था। मौलाना अमीन हसन इस्लाई के ऊपर मैंने एक नोट लिखा था, जो भी हाल में मेरे फुटनोट को किसी ने दोबारा साइट किया। और दूसरा डॉक्टर फजलुर रहमान जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो वाले थे, उन पे एक नोट लिखा था मैंने। तो वो मेरी जो सुपरवाइजर थी, उन्होंने कहा ये आपने सिर्फ शो मारने के लिए लिखा है कि आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। मैं कहा नहीं मैम, मैंने इसलिए नहीं लिखा कि मैं कोई शो ऑफ करना चाहता हूँ। ये वाकई एक नुक्ता है कि किसी बंदे ने श्लेयर मार्कर को इस्लाई के साथ कंपेयर किया, और मैं ये आई वांट टू सेट दिस पॉइंट कि अगरचे उनकी हर्मेन्यूटिक्स बहुत मिलती जुलती है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट के जो सिस्टम्स हैं, हमारे यहाँ जो उसूल तफसीर है और उनकी लैंग्वेज में कुछ डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझे बगैर अगर आप ये करेंगे तो ये मसले पैदा होंगे। सो इफ यू हैव समथिंग न्यू टू से इट, जस्ट एडिंग कि जी मैंने ये भी पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ा हुआ, दैट क्रिएट्स द इंप्रेशन कि ये बस बताना चाह रहा है, अपना कोई कंटेंट नहीं। एक अनीला ने, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो। यस, हाँ, अनीला ने भी, ये खान ने लिखा है कि citation should also be paraphrased to avoid plagiarism. citation should be paraphrased. कैसे उसको, मुझे खुद समझ नहीं आई। citation तो citation है,
मतलब I don't understand any साइटेशन तो वो मतलब उसको लिखने का तरीका होगा ना, जो किताब या जर्नल आप डालेंगे कि उसमें तो उसको नाम पैराफ्रेज तो आप कर नहीं सकते, बट द कंटेंट फ्रॉम द cited book गालिबन वो आप ये पूछ पैराफ्रेज रही होंगी कि उसको अगर दोबारा साइट करना है तो उसके तो तरीके होते हैं, हर एक अपना सिस्टम है। मसलन CMS में आप जब दोबारा टाइप करेंगे तो पहले वो इबिड वगैरह ज्यादा या ऑफ साइट यूज किया जाता था, लेकिन अब नहीं करते। अब वो उसका शॉर्ट फर्स्ट नेम शॉर्ट नेम लिख के एडिशन डाल के तो आगे पेज नंबर कॉमा डाल के लिख देते हैं जी। Acha, but there are no more, I think, questions in, but the messages that are coming in are like, should Islamic studies be dealt under the social sciences? That's a very interesting question. नहीं, इस्लामिक स्टडीज को अब जिस तरीके से क्योंकि इस्लामिक स्टडीज की फील्ड असल में मगरिब में ही डेवलप हुई है। हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है उलूम दीनिया और तरह पढ़ाया जाता था, और इसकी भी अब 300 साल की तारीख तो हो चुकी है। इस पर बड़ा अच्छा आर्टिकल है, हैदर MP का एडिट किया हुआ, जो मेरी कॉलीग हुआ करती थी। तो ये इंसाइक्लोपीडिया मॉडर्न इस्लामिक वर्ल्ड में कि इस्लामिक स्टडीज अब कैसे डेवलप हुई है। मॉडर्न टाइम्स में इस्लामिक स्टडीज फिलोसफी के दायरे में भी आ जाती है, एंथ्रोपोलॉजी के दायरे में भी आ रही है, सोशल साइंस के दायरे में भी आ रही है। प्योर ह्यूमैनिटीज के दायरे के लोग बहुत थोड़े हैं जो अरबी फारसी उस सतह की जानते हो, टेक्स्ट के साथ एंगेज करते हो, और फिर वो थोड़ा बहुत सोशल साइंस की भी समझते हो। तो वो बहुत थोड़े लोग हैं। लेकिन बाहर की यूनिवर्सिटीज तो बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है। आपको मालूम है हार्वर्ड में इस वक्त तकरीबन 6 to 10 ईयर प्रोग्राम है इस्लामिक स्टडीज का PhD करने के लिए। टोटल प्रोग्राम 10 साल का बनता है उनका। तो वो क्रिएट कर रहे हैं ऐसे स्कॉलर्स के जो सोशल साइंस से भी वाकिफ होते हैं और टेक्सचुअल स्टडीज भी कर सकते हैं। तो अब एरिया स्टडीज जिसको कहा जाता है, उसमें टेक्स्ट से बाहर जाके नॉन टेक्सचुअलिस्ट, बल्कि किसी जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज में टेक्सचुअलिस्ट बड़े कम होते हैं और वो थोड़ा सा मजाक भी उड़ाते हैं कि ये घुसे रहते हैं किताबों के अंदर और पुरानी जुबानें इस्तेमाल करते हैं जो कोई बोलता नहीं है। लेकिन बहरहाल मुझे इसरार है कि टेक्सचुअलिस्ट जो है वो बेकार आदमी नहीं होता। इतनी भी बेकार जिंदगी हम जैसे लोग नहीं गुजारते। Everybody has a part to play, I think. अच्छा, बड़ा मजे का है आपके मुतालिक बहुत the very superlatives like fascinating, insightful, professional. आपके मतलब I would think calling somebody a professional is really par excellence. नजर है हमारे। हाँ जी, मगर एक सवाल है कि आपने बहुत सारी बातें की which were related to philosophers and philosophy. तो ये बार बार पिछले सेशन में भी और इसमें भी आया था कि कुछ बेसिक हमें फिलोसफी की रीडिंग्स के मुताल्लिक अगर आप एक रेफरेंस दे दें तो वी कैन टेक इट आफ्टरवर्ड्स। अगर आप 3-4 रीडिंग्स अगर मेन फिलोसफर्स सादा चीजें जो पुराने जमाने में पढ़ी जाती थी वो अच्छी हैं, जो हमारे साथी के जमाने में पढ़ी जाती थी वो अच्छी हैं, वो पढ़ी लेनी चाहिए। वो इतनी लंबी भी नहीं है। वो स्टेस की होती थी ग्रीक फिलोसफी, वो इट्स अ गुड इंट्रोडक्शन, सादा इंट्रोडक्शन है उसकी स्टेस की ग्रीक फिलोसफी। और दूसरा जो विल ड्यूरां की किताब जो है स्टोरी फिलोसफी, वो भी इजी रीडिंग है, आसानी से पढ़ी। लेकिन उसके बाद अभी हाल में जो हर्मेन्यूटिक्स पे किताबें आई हैं ना जी, जो इंट्रोडक्शन टू हर्मेन्यूटिक्स, वो अभी मुझे अब इस्तेजार नहीं है इस वक्त कि कौन सी उसमें ज्यादा इंट्रोडक्टरी टाइप किताबें हैं, लेकिन मैं आपको मेंशन कर दूंगा। तो उसका एक तारुफ जरूर होना चाहिए क्रिटिकल स्टडीज और हर्मेन्यूटिक्स के। क्रिटिकल स्टडीज में ये जो मैं आपको बता रहा था, ऑक्सफोर्ड की सीरीज जो है इंट्रोडक्शन टू ब्रीफ इंट्रोडक्शन सीरीज जो आई है उनकी, उसमें जॉनथन कलर की है क्रिटिकल स्टडीज की भी, और उन्होंने हर्मेन्यूटिक्स पे भी एक लिखी हुई है। तो अच्छा, हम आपसे आसिफ, अगर आप बुरा ना मनाए, सॉरी फॉर कटिंग यू, कि हम आपसे कुछ ये लिस्ट ले लेंगे एंड विल सेंड इट टू एवरीबॉडी बिकॉज़ मेनी पीपल मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव आस्क्ड। तो एक लिस्ट हम लेके तो आपसे हम लेंगे। एक हाथ है आबिद नईम, वुड यू लाइक टू अनम्यूट एंड आस्क व्हाट यू नीड टू आस्क? जी आबिद। Luckily, we can continue this session, Asif, if you allow, as long as others are interested. I still see 112 participants. There were 125 when the session was going on. Ji Abid, I'm waiting for you to unmute and ask the question. You had raised your hand. Ji, not allowed to. Anish, unmute kare, please, Abid ko. I think you have muted everybody.
Can you please try it now? He's on unmute. जी आबिद. जी आबिद, you are unmute. You can speak. जी मुझे सुन रहे हैं आप? बिल्कुल सुन रहे हैं, but there is a crackle. हैंड फ्री का इशू था, मैं तो क्वेश्चन कर चुका था. अच्छा, मैं दोबारा कर लेता हूँ. तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस्लामिक स्टडीज में हम चूंकि कोटेशंस की जरूरत पड़ती है हमें, और वहां पे जब हम कोट करते हैं चीजें तो वो सिमिलैरिटी इंडेक्स का इशू जो है ना, वो सिमिलैरिटी इंडेक्स जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. इस्लामिक स्टडीज में ये एक इशू है. अब वो इनएविटेबल भी है, उसके बगैर आपकी रिसर्च की वो वर्थ भी नहीं होती है. तो एक तो हमारे रूल्स जो है, मेरा ख्याल है उनको भी चेंज होना चाहिए कि शायद इस्लामिक स्टडीज या रिलीजियस स्टडीज को थोड़ा सा अलग से देखने की जरूरत है एचईसी की या इन लेवल्स पे भी. लेकिन हम इस मसले को किस तरीके से फिर डील कर सकते हैं, इसके हवाले से काइंडली आप गाइड. Very quickly, आबिद, थोड़ा सा मैं आपको दूं. If you're looking at similarity check through Turnitin, so there are some triggers that you have to. You can actually put this trigger of that. आपकी जो citations हैं या references हैं, वो उनको उसमें से निकाल देता है similarity index में. This happens with all disciplines. अगर आप वो triggers को uncheck नहीं करेंगे, तो वो आपको टोटल का एक सिमिलैरिटी चेक देगा जिसमें बार बार साइटेशंस भी आएंगी और आपकी रेफरेंसेस भी आएंगी. दिस इज नॉट जस्ट विद इस्लामियात. और इज योर क्वेश्चन डिफरेंट टू दैट, तो फिर उसके बाद आप बताइए कि क्या इसके अलावा आप करना चाह रहे हैं. क्योंकि इफ यू लुक एट सम, जिस तरह मूडल में आपको कमांड्स देनी पड़ती हैं बिफोर डूइंग एनीथिंग, इसी तरह टर्निटिन को कुछ कमांड्स देनी पड़ती हैं. एंड वी ऑलवेज एडवाइज पीपल टू कीप अनचेक कि आपको नहीं चेक करनी वो रेफरेंसेस ना इसमें डाली जाए, तो फिर ये मसला नहीं होता जिसको आप कह रहे हैं कि वो आता है बार बार. Does that help? जी थैंक यू. हाँ जी आसिफ, any other questions? No, it seems that lots of thanks and lots of commendations. And Asif, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपकी टॉक जो है वो इतनी गंभीर और मुश्किल होती है कि मुझे 100% अपने ग्रे सेल्स, I have to keep them employed to keep on understanding where you're going and what you're saying. So हम लोग पढ़े लिखे भी नहीं है इतने जितने कि आप पढ़े लिखे हैं. अब क्या करें? Honestly, your language, your command over different disciplines, your scope of knowledge is so wide, and the examples that you bring in are so powerful. You know, one is lost in trying to decipher. मैं तो गालिब के शेर पे तारीज करके आता हूँ कि बकरा हूँ जुनू में क्या क्या, कुछ तो समझे खुदा करे. कोई कुछ तो समझे को उस पे आप तकरार रखें. हमारे जैसों को तो कुछ शायद समझ भी कमी से आती होगी, but listening to you honestly is like listening to a real song. उसमें जो वो ब्यूटी है ना कि then you say, oh my God, this is a maestro. That is the feeling I get every time I listen to you, and I cannot thank you enough for giving us an opportunity to listen, to hear how you would think a good talk is, what it means. I think this is a model that I would describe for us to aspire. So that I wish one day I could talk like this and bring across so many disciplines and so much experience into my talk. So I'm always like after every session I'm saying, this will not be new for me, and then I'm stumped again. So thank you so much, Asif. I'm truly indebted for your time, and there can't be paid. There's no payment for such time that you give us and the effort you put into it. Thank you so much. God bless you. Thank you. Bye-bye.